Hello friends, welcome to Anil Sir's class. In today's class, we are going to discuss the importance of passage, the tricks of solving comprehension passage, and I will be providing you explanation of your test series, your test paper, which has 2 passages and 10 questions. See, before starting the passage explanation, let me tell you one thing. How to solve comprehension passage in the exam? There are certain tricks to solve comprehension passage. Trick number 1. First and foremost, do not read the passage. But students must be asking, sir is saying do not read the passage. Without reading the passage, how will we solve the answers? Yes, you have to read, but first, before reading the passage, you must read the questions. This is your passage given in your test paper. These are the questions. First, just go through the questions and the options. Just take a quick look at the questions. 5 questions. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 questions in every passage. So take a quick look, a scanning of all those 5 questions before starting to read the passage. Once you have scanned all those 5 questions, then you can start with the passage reading. Now, you must have a quick or fast reading of the passage, bearing in mind the words of the question and the options. I'll show you how. And by a quick reading, once you have read the questions and the options, and then when you are reading the passage, you must mark down on your paper. Since it is an online exam, you will have a paper and a pen with you. You will be provided with a piece of paper and pen. So you must mark the line numbers. As soon as some word clicks off that question or option, you must mark that line immediately on the paper. And then after giving a quick reading to the passage, go back to question number 1. Read the question again. Now, as soon as you will read the question, you will come to know some idea about that line. Where does it lie in the passage? So you'll go back to the passage, find that line of the question, go back to the option and tick the answer. This is going to make you solve at least 3 to 4 questions easily. Sometimes one question out of 5 questions is based on gist of the passage. So for that, you have to read the entire passage thoroughly. But it happens, there's a 5% chance of this. 95% questions are, you will be able to solve 95% of the questions like this, which I'm telling you. I'll just show you how do you do this. First question, the new cultural understanding does not fit into the traditional notion of culture. अब नई cultural understanding की बात कर रहा है जो फिट नहीं होती ट्रेडिशनल नोशन पर. और ये 4 ऑप्शंस हैं. न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रेडिशनल सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ मीनिंग, क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकल इशू इन द प्रेजेंट डे कल्चरल लर्निंग. आज की कल्चरल लर्निंग का फोकल इशू पूछ रहा है. अंडरस्टैंडिंग अनएंडिंग डिस्कशन, कंटेक्चुअल क्लैरिटी, एंथ्रोपोलॉजिकल कंसर्न एंड द नीड टू ऑर्गेनाइज द इशू प्रॉपर्ली. थर्ड, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इतनी सारी चीजें याद कैसे रहेंगी जब आप पैसेज पढ़ रहे होंगे. याद रहेंगी, आपको ऐसे लग रहा है. जो चीज़ आप एक बार रीड कर लेते हो वो दिमाग में स्टोर हो जाती है, कुछ हद तक वो रिकॉल हो जाती है. हिस्टोरिकली द सर्च फॉर आइडेंटिटी हैज बीन, सर्च फॉर आइडेंटिटी, कीवर्ड्स आपको याद रखने. और फिर ये 4 ऑप्शन है. ऑप्शन चाहे मत पढ़ो आप, लेकिन क्वेश्चन के कीवर्ड याद रखने. द एडवेंट ऑफ नेशनलिज्म. अब जहां ये एडवेंट ऑफ नेशनलिज्म आपको दिख जाए वहां पर अंडरलाइन तो नहीं कर पाओगे, ऑनलाइन है, नोट कर लेना लाइन. आइडेंटिटी हैज अ टेंडेंसी टू. अब देखिए 5 क्वेश्चन थे. पहला क्वेश्चन था कि न्यू नोशन ऑफ कल्चर डज नॉट फिट इनटू ट्रेडिशनल नोशन. दूसरा क्वेश्चन था फोकल इशू प्रेजेंट डे कल्चर लर्निंग का. तीसरा हिस्टोरिक सर्च ऑफ आइडेंटिटी पर. चौथा एडवेंट ऑफ नेशनलिज्म पर. और 5वां आइडेंटिटी की टेंडेंसी पर. अब लेट अस स्टार्ट विद द पैसेज एंड वी विल स्टार्ट विद रीडिंग ऑफ a simple reading of the passage.
इफ सो मच ऑफ प्रेजेंट डे कल्चरल लर्निंग डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए पहली लाइन में उसने पहला क्वेश्चन क्या था कि नया जो कल्चरल ट्रेडिशन है, जो नया कल्चरल लर्निंग है वो ट्रेडिशनल पर फिट नहीं हो रहा। और देखिए प्रेजेंट डे कल्चरल लर्निंग डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट, मतलब हमारी जो प्रेजेंट डे कल्चरल लर्निंग है इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट। हाउ डू द रिजल्टिंग असेंबलेजेस एक्वायर एन ऑर्गेनाइज्ड कोहेरेंस। तो वो कह रहा है कि इससे जो रिजल्टिंग असेंबलेज आ रहा है, असेंबलेज मींस कॉन्ग्रीगेशन, जो कोऑर्डिनेशन है वो ऑर्गेनाइज्ड कोहेरेंस के ऊपर कैसे होगा, कैसे एक्वायर करेगा, ये इशू उसने बोला। दैट मींस अब मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या था, न्यू कल्चरल अंडरस्टैंडिंग डज नॉट फिट इनटू द ट्रेडिशनल नोशन। व्हाई? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शंस देखिएगा, न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रेडिशनल सोशल डिवीजन, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ मीनिंग, क्रिएशन। अब ये चारों नहीं है ऑप्शन में, इसका मतलब पहला क्वेश्चन अभी और हमको पढ़ना पड़ेगा, ये तुरंत क्लियर हो गया। वापस चलेंगे। One way this issue is being raised in recent anthropology is through the concern with identity. और ये जो हमने अंडरलाइन किया था सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट वाला, ये हमें आगे काम आ सकता है। One way this issue is being raised in recent anthropology is through the concern with identity, whether defined as identity of the person of an ethnic group or an entire nation. But identities do not swim above in the stream of social life like amoebas in fermenting banana soup. If definitions of identity involve a characteristic of attributes and a drawing of boundaries around the units so defined, in contrast with other units, this must have a causal context. Moreover, we know that, अब देखिए एक आइडेंटिटी पर भी क्वेश्चन था और उसने कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एट्रीब्यूट्स पे डिपेंडेंट है एंड ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज अराउंड द यूनिट्स, दिस मस्ट हैव अ कॉजल कॉन्टेक्स्ट। तो वो आइडेंटिटी के लिए कॉजल कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, इसको अंडरलाइन कर देंगे या आप एग्जाम में लाइन नंबर लिख देंगे, क्योंकि आइडेंटिटी की बात उसने करी थी। Moreover, we know that the search for identity varies historically, intensifying or slackening over। अब देखिए हिस्टोरिकल पे भी एक क्वेश्चन था कि हिस्टोरिकली वाली बात उसने करी थी, तो हिस्टोरिकली सर्च फॉर आइडेंटिटी वेरीज, क्यों वेरी करती है? इंटेंसिफाइंग और स्लैकनिंग ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम। अंडरलाइन कर दो, वहां पे काम आएगा बाद में, वापस जब क्वेश्चन पढ़ेंगे। अंडरलाइन या लाइन नंबर नोट करना है। इंटेंसिफाई मतलब बढ़ना और स्लैकनिंग मतलब कम होना। मैं आपको साथ साथ मीनिंग भी समझाता जा रहा हूं। Thus, a major rise occurred in the demand for identity with the advent of the nation states and the collateral development of nationalism, which hoped to create a unified and identifiable people out of diverse population with distinctive identities of their own. Recently, the demand for identities has risen once again, precisely at a time when cultural repertoires and are becoming again more heterogeneous. Heterogeneous मतलब अलग-अलग वैरायटी वाले, अलग-अलग डिफरेंसेस वाले, अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले. Thus, a major rise occurred in the demand for identity with the advent of the nation state and the collateral development of nationalism. Advent मतलब होता है उजागर होना, start होना, which hope to create a unified and identifiable people out of diverse population. Diverse मतलब different, varied, with distinctive identities of their own. Distinctive means individual. Recently, the demand for identities has risen once again, precisely at a time when cultural repertoires are becoming again more heterogeneous. Repertoire means all the things that a person can do, all the things that a person is able to do. That is called repertoire. So, cultural repertoire is everything that a culture depicts of. Becoming again and again more heterogeneous. Heterogeneous means with different characteristics. As people have responded to changes in the social division of labor, in their relation to governments, in reaction to new modes of communication. These repertoires of cultural understandings and practices do not easily at any traditional notion of culture fit at any traditional notion of culture as an integral and integrated set of forms. देखिए अब वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि ट्रेडिशनल, वो आ गया हमारी लाइन अब जो हम ढूंढ रहे थे। These traditional notions do not fit easily in the new notions. Why? Because becoming more and more heterogeneous
and in reaction to new modes of communication. तो न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन रिएक्शन की वजह से ये ट्रेडिशनल नोशन में फिट नहीं हो रहे. सो नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, हमने पूरा पढ़ लिया. अब क्वेश्चन एक एक करके. द न्यू कल्चरल अंडरस्टैंडिंग डज नॉट फिट इनटू द ट्रेडिशनल नोशन ड्यू टू न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया. न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकल इशू इन द प्रेजेंट डे कल्चरल लर्निंग. तो अब सेकेंड क्वेश्चन करेंगे. फर्स्ट तो हमारा हो गया, व्हाट इज द फोकल इशू इन द प्रेजेंट डे कल्चरल लर्निंग. आज की प्रेजेंट डे कल्चरल लर्निंग में फोकस्ड इशू क्या है. तो अब मैं आपको याद दिला दूं, हमने जब शुरू में प्रेजेंट डे कल्चरल लर्निंग की बात की थी, प्रेजेंट डे कल्चरल लर्निंग डिपेंड्स ऑन, मतलब फोकस्ड इशू क्या है, सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट. अब वो यहां पे काम आ गया. सो सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट ढूंढो इसमें. अनएंडिंग डिस्कशन नहीं, कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी. हाँ, कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी, एंथ्रोपोलॉजिकल नहीं, नीड टू ऑर्गेनाइज नहीं, कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी, सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए. ये आपका सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया. तो दोस्तों, जब आप पैसेज को एक बार पहले, उससे पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हो, फिर आप पैसेज पढ़ते हो, तो आपको आइडिया लग जाता है वो लाइन कहां पर है. डेफिनेटली बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी पॉसिबल ओनली बाय प्रैक्टिस. आपने जब तक 40-50 पैसेज नहीं करे, तब तक आपको इतना अच्छा क्लैरिटी नहीं आएगी, रिटेंशन नहीं आएगी. कि ये अभी तो शुरू में 1-2 पैसेज, पहले पैसेज में, दूसरे पैसेज में, पहले 5-7 पैसेज में आपको लगेगा कि मैं जो क्वेश्चन पढ़ा भूल गया, मैं ये भूल गई. सो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, फास्ट रीडिंग, रिटेंशन ऑफ मेमोरी. सो it requires practice. That is why we have this test series for you. They've got plenty of passages there. At least 100 questions you have got. 10 test papers. Each test paper has 10 questions of passages, 2 passages. So you have got so many passages to solve. Then again you have 10 practice papers also. Those practice papers also have 5 questions each of passages in every paper. So 50 questions of passage there. So in all you will be getting 100 plus 50, 150 questions of passages to practice. 150 plus 10 are free for you. So 160 passages questions are there for you for practice. So keep on practicing. Get those test series. You have that test series in the app. So you will have plenty of questions there. And you all also have free videos, explanatory videos in that test series along with every test paper. So you will be getting tricks and keywords in those explanations. So second is done. Now third question. Let us move on to third question. Historically the search for identity has been, याद करो historically word मैंने क्लिक किया था, ढूंढेंगे कहां पर है, ये रहा. historically सर्च फॉर आइडेंटिटी. सर्च फॉर आइडेंटिटी वेरीज. क्यों वेरी करती है? बिकॉज इंटेंसिफाई होती है या स्लैकन होती है ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम. कभी इंटेंसिफाई होती है, कभी स्लैकन होती है, बढ़ती है, कभी कभी घटती है. तो ये ढूंढते हैं कहां पर है. ये रहा. यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है. स्लैकनिंग ऑफ कल्चर. इंटरमिटेंट इंटेंसिटी. यस, द इंटेंसिटी इज इंटरमिटेंट. इंटरमिटेंट मतलब कभी बढ़ती है, कभी कम होती है, आइदर इंक्रीज और स्लैकन. तो इंटरमिटेंट इंटेंसिटी जो है, हिस्टोरिकली द सर्च फॉर आइडेंटिटी हैज बीन आइदर इंक्रीजिंग और स्लैकनिंग. इंटरमिटेंट इंटेंसिटी. लीजिए, ये भी आंसर आ गया. नेक्स्ट देखते हैं. एडवेंट ऑफ नेशनलिज्म लेड टू. अब नेशनलिज्म का एडवेंट ढूंढते हैं कहां पे था. नेशनलिज्म यहां पर कहीं, thus a major rise occurred in the demand for identity with the advent of nation state and collateral development of nationalism, which hoped to create a unified and identified people out of diverse population with distinctive identities of their own. अब देखिए, यूनिफाइड आइडेंटिटी चाहिए डाइवर्स पॉपुलेशन में से, ये था एडवेंट ऑफ नेशनलिज्म का. तो
आपको बहुत सारी डाइवर्स पॉपुलेशन में से एक यूनिफाइड आइडेंटिटी चाहिए. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. तो अब क्वेश्चन देखते हैं. Advent of nationalism led to competing identities? No, not competing. Single identity? No. Emergence of a unified cultural repertoire? No, ये तो कहीं और पढ़ा था हमने. Unity within diverse identities? Yes, diverse population में से आपको unity निकालनी है. उन diverse identities में से आपको unity करनी है. Unified word भी था और diverse population word भी था. तो सीधा क्लिक कर गया कीवर्ड, ये आंसर आ गया. So 4 questions have been done. Now next question, 5th question. The identity has a tendency to have. अब इस आइडेंटिटी पर ही क्या टेंडेंसी होती है तो देखते हैं. वापस जाते हैं उस पर, आइडेंटिटी वाली लाइन पर. यहां थी वो लाइन. यूनिफाई एंड आइडेंटिफाई पीपल आउट ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन विद डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटीज ऑफ देयर ओन. मतलब आइडेंटिटी की टेंडेंसी है कि हर एक आइडेंटिटी की अपनी अलग डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी है. हर आदमी की अपनी अलग आइडेंटिटी है, सेम किसी की भी नहीं है. उस डाइवर्स में से हमको यूनिटी ढूंढनी है. सो अब इसको ढूंढो क्वेश्चन आंसर को. आइडेंटिटी हैज अ टेंडेंसी टू हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट्स फ्रॉम अदर्स. हाँ, यही वो कह रहा है कि सबकी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज है, कोहेरेंस नहीं है. अनडिस्टिंग्विशेबल बाउंड्रीज की बात नहीं कर रहा, मूवमेंट ऑफ अ स्ट्रीम नहीं बात कर रहा. वो बोल रहा है कि सबकी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज है, सबके एट्रीब्यूट्स बाकियों से अलग हैं, डाइवर्स हैं, और उसकी वजह से उस डाइवर्स पॉपुलेशन में से यूनिटी हमको फाइंड करनी. तो बच्चों इस तरह से ये 5 क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किए, ये तरीका धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे तब आपको धीरे धीरे ये तरीका की प्रैक्टिस हो जाएगी और इस तरीके से क्वेश्चंस की स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी. स्पीड इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज बाय प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ओनली. Let us move on to the next passage. Read the following passage carefully and answer questions. Again, the same policy will apply. Again, first we will read the questions. What was the consequence of removal of barriers to flow of trade in European Union? अब removal of barrier याद रखना कीवर्ड आपको. Mass production of a few variety, mass production याद रखना है. Lower product price. Impact of international competition. एंड डेवलपमेंट ऑफ यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीनरी. अब 5 क्वेश्चन हमने पढ़े. धीरे धीरे 5-7-10 पैसेज करने के बाद में आपको ये याद भी होने लग जाएंगे. पहला हमने क्या पढ़ा था? रिमूवल ऑफ बैरियर, है ना. दूसरा क्या पढ़ा था? मास प्रोडक्शन. तीसरा क्या पढ़ा था? इंटरनेशनल ट्रेड का इंपैक्ट. चौथा क्या पढ़ा था? स्पेशलाइज्ड मशीनरी और लोअर प्रोडक्ट प्राइस. ये हमने पढ़े. ठीक है, अब शुरू करते हैं, पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं. इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड अराइजेज इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन. इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के बारे में बात कर रहा है. दैट इज इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन फोर्सेज ईच फॉर्म ऑफ प्लांट इन इंडस्ट्रियल कंट्रीज. अब याद दिलाता हूं आपको, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एक क्वेश्चन में था वर्ड. इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन फोर्सेज ईच फॉर्म ऑफ प्लांट in industrial countries to produce only one or at most a few varieties and styles of the same product. ये एक क्वेश्चन में था, इंटरनेशनल कंपटीशन का क्या होता है उससे. rather than many different varieties and styles. This is crucial in keeping unit cost low. With few varieties and style, more specialized and faster machinery can be developed for a continuous operation and a no longer production run. The nation then imports other varieties and styles from other nations. Intra-industry trade benefits consumers because of the wider range of choices, that is greater variety of differentiated products available at the lower prices made possible by economies of scale in production. Because of this, large welfare gains arise from the ability of consumers to greatly increase the variety of goods that they can purchase through trade. The importance of intra-industry trade became apparent when tariffs and other obstructions to the flow of trade among members of European Union or common market were removed. Barriers removed. आ गया. एक क्वेश्चन में था बैरियर रिमूव होने पर क्या होता है. It was found that volume of trade surged. अब बैरियर रिमूव करने से ट्रेड वॉल्यूम बढ़ता है. But most of the increase involved the exchange of differentiated products within each broad industrial classification. अब हमको पढ़ने से 3 लाइन तो दिख गई, बाकी 2 नहीं दिखी, वो ढूंढेंगे. अब पहला,
व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू द फ्लो ऑफ ट्रेड इन यूरोपियन यूनियन? ये रहा रिमूवल ऑफ बैरियर का कॉन्सिक्वेंस क्या था? कॉन्सिक्वेंस ये था कि देयर वाज अ सर्ज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ गया। अब ढूंढो कहां है? sluggish intra industry trade? No. Flow of uniform product? No. Spurt in trade volume? Yes. Surge in trade volume. Trade volume एकदम बढ़ गया था। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पहले पढ़ करके उसके कीवर्ड को याद रख करके क्वेश्चन के, तब आप जब पैसेज पढ़ते हो, और वो कीवर्ड डेफिनेटली शुरू में आपको 5 में से 2 ही आते रह पाएंगे, 3 रहेंगे, फिर धीरे धीरे 4 याद होने लग जाएंगे, फिर 5 याद होने लग जाएंगे, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से बढ़ेगा। और आपने देखा एक बार क्विक स्कैनिंग करी पैसेज की और हमने सीधा क्वेश्चन पे वापस आ गए और फिर उसकी लाइन को ढूंढा वापस से। ये तरीका सबसे बेस्ट होता है, इससे पैसेज फास्ट भी हो जाता है सॉल्व और सटीक भी हो जाता है और कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। कई बार ऐसा होता है कि पैसेज के कई वर्ड्स हमें समझ ही नहीं आ रहे, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, हम उसको उसमें चक्करों पड़ते ही नहीं समझने के, हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन के कीवर्ड्स को ढूंढा और पैसेज में चले गए। ये कीवर्ड्स वाला हमेशा आपके फायदा देता है। नेक्स्ट, मास प्रोडक्शन ऑफ फ्यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब मास प्रोडक्शन का एक जगह लाइन थी, मास प्रोडक्शन ऑफ फ्यू वैरायटीज। ये रहा, इंटरनेशनल कंपटीशन फोर्सेस टू प्रोड्यूस ओनली वन और एट मोस्ट फ्यू वैरायटीज। मास प्रोडक्शन की बात हो रही थी, ऑफ द सेम प्रोडक्ट रादर देन मेनी डिफरेंट वैरायटीज। दिस इज क्रूशियल इन कीपिंग यूनिट कॉस्ट लो। तो वो जो मास प्रोडक्शन, फ्यू वैरायटीज का मास प्रोडक्शन होगा तो उससे कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? यूनिट कॉस्ट लो रखनी पड़ेगी आपको। चलिए अब देखते हैं, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। मास प्रोडक्शन ऑफ फ्यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट विल रिजल्ट इन, अगर आप फ्यू वैरायटी का मास प्रोडक्शन करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? यूनिट कॉस्ट लो आएगी, ये बोला था उसने। तो ढूंढो कहां यूनिट कॉस्ट लो आएगी। पहला देखिए, लो कॉस्ट ऑफ यूनिट, ये आंसर आ गया, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तीसरा क्वेश्चन, लोअर प्रोडक्ट प्राइस मींस, एक जगह लोअर प्रोडक्ट प्राइस की लाइन थी, अगर आपको याद हो तो। मैं फिर वापस जाता हूं पैसेज पर। लोअर प्रोडक्ट प्राइस पे यहां पे कहीं एक लाइन थी, कंटिन्यूस ऑपरेशन नेशन देन इंपोर्ट्स, इंटर इंडस्ट्री बेनिफिट्स कंज्यूमर्स, वाइडर रेंज ऑफ चॉइस अवेलेबल एट लोअर प्राइसेस मेड पॉसिबल बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लोअर प्रोडक्ट प्राइसेस ये रहा, उसने पूछा लोअर प्रोडक्ट प्राइस का मतलब क्या होता है। तो हम वापस उस पर जाएंगे और inter-industry benefits consumers because of the wider range of choice, greater variety of differentiated products available at lower price made possible by economies of scale in production। ये तो आ गई बात लोअर प्राइस की। इससे क्या होगा? लार्जर वेलफेयर राइज फ्रॉम एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू ग्रेटली इंक्रीज द वैरायटी ऑफ गुड दैट दे कैन परचेज। अब देखिए, लोअर प्रोडक्ट प्राइसेस की उसने बात करी, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि इससे लार्ज वेलफेयर गेन होगा, एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स टू ग्रेटली इंक्रीज द वैरायटी ऑफ गुड्स दैट दे कैन परचेज। दो बातें बोली उसने, वेलफेयर गेन होगा और कंज्यूमर ज्यादा वैरायटी खरीद पाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या आता है। लोअर प्रोडक्ट प्राइसेस मींस कंटिन्यूड प्रोडक्शन रन? नहीं। एब्सेंस ऑफ चॉइस नहीं बोला उसने, गेन का बात करी। इंक्रीज इन ट्रेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की बात नहीं करी। इंक्रीज कंज्यूमर परचेजिंग पावर, इसकी बात कर रहा था वो, कि लोअर प्रोडक्ट प्राइस होने से कंज्यूमर की परचेजिंग पावर, वैरायटी ज्यादा खरीदने की क्षमता या परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए 6, 7, 3 क्वेश्चन हमारे आराम से सॉल्व हो गए एक पैसेज की क्विक स्कैनिंग से और पहले के क्वेश्चन पढ़ने से। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल कंपटीशन, एक जगह इंटरनेशनल कंपटीशन को मैंने अंडरलाइन किया था जब पढ़ते वक्त। इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल कंपटीशन ऑन इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कैन बी सीन इन। अब इंटरनेशनल कंपटीशन का इंपैक्ट ट्रेड पर आप कैसे देखते हैं, क्या उसमें वैरायटी आता है? तो देखते हैं, यहां कहीं इंटरनेशनल कंपटीशन को मैंने अंडरलाइन किया था, यहां पे कहीं पे ढूंढेंगे इंटरनेशनल कंपटीशन। ये रहा इंटरनेशनल कंपटीशन। अब जैसे ही वो कीवर्ड दिखा तुरंत उस लाइन को पढ़नी है। इंटरनेशनल कंपटीशन फोर्सेस ईच फर्म इन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस ओनली वन और एट मोस्ट अ फ्यू वैरायटी। तो इंटरनेशनल कंपटीशन जो है वो फोर्स करती है कि या तो एक प्रोड्यूस करो या फ्यू वैरायटीज प्रोड्यूस करो। चलो क्वेश्चन पे देखते हैं, वापस क्वेश्चन पे चलते हैं।
इंटरनेशनल कंपटीशन का इंपैक्ट क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाइड वैरायटी, नो, वो तो मना कर रहा है। लिमिटेड वैरायटी ऑफ द सेम प्रोडक्ट, यस, उसी प्रोडक्ट की या तो एक ही वैरायटी आप बना सकते हो या फ्यू वैरायटीज बना सकते हो, तो सेम प्रोडक्ट की लिमिटेड वैरायटीज ही मिल पाएंगे आपको। ये इंपैक्ट है इंटरनेशनल कंपटीशन का। तो देखिए अब चौथा क्वेश्चन भी आराम से हो गया सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीनरी विल लीड टू। मशीनरी की बात एक जगह आई थी, हम वापस वहीं पे चलते हैं। मैंने अंडरलाइन भी किया था मशीनरी पर, यहां कहीं मशीनरी की बात उसने की थी, लास्ट में कहीं थी। Because of this large welfare gain, importance of tariff, flow of trade, most of the increased, पीछे मशीनरी, ये रही मशीनरी, फास्टर मशीनरी। तो मशीनरी की उसने बात की थी, विद फ्यू वैरायटी एंड स्टाइल एंड मोर स्पेशलाइज्ड एंड फास्टर मशीनरी एंड अ लॉन्गर प्रोडक्शन रन, द नेशन इंपोर्ट्स अदर वैरायटीज एंड स्टाइल्स फ्रॉम अदर नेशंस। तो ज्यादा फास्टर मशीनरी होने से, स्पेशलाइज्ड मशीनरी होने से जो नेशन है वो दूसरे नेशन से अदर वैरायटीज को इंपोर्ट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं ये ऑप्शन में कहां पर है। डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीनरी विल लीड टू मोर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, डिक्रीज कंज्यूमर वेलफेयर, नो, इंपोर्ट ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, हाँ, एक नेशन दूसरे नेशन से बहुत सारी वैरायटी इंपोर्ट कर सकता है, यही वो बोल रहा है। तो डायरेक्ट हिट होता है। ये जो तरीका आपको मैंने सिखाया बच्चों, ये बहुत कारगर, वेरी, इट्स अ वेरी गुड सिस्टम, ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम बाय मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स, एंड 95% of the questions are easily solved by this system. One, you have to read the questions first and determine or remember the keywords. Even if you think that you cannot remember, write it down. You have a paper, you have a pen. Best is, as soon as you read the 5 questions, read those keywords in the question and write it down immediately. छोटे छोटे एक एक वर्ड लिखने हैं, मशीनरी, इंपोर्ट, इंपैक्ट ऑफ कंपटीशन, फटाफट 5 वर्ड ही तो लिखने हैं आपको, एक क्वेश्चन से एक वर्ड। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आएगा, आपने पैसेज आया, आपने 5 क्वेश्चन का व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिमूवल ऑफ बैरियर, रिमूवल ऑफ बैरियर एक वर्ड लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन में मास प्रोडक्शन लिख दिया पेपर पे, थर्ड में लोअर प्रोडक्ट प्राइस लिख दिया, फोर्थ में इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल कंपटीशन लिख दिया, या सिर्फ इंटरनेशनल कंपटीशन लिख दिया, सिर्फ कंपटीशन वर्ड में लिख दिया तो भी हो जाएगा। डेवलपमेंट में जो स्पेशलाइज्ड मशीनरी, सिर्फ मशीनरी लिख दो, बस, दैट्स ऑल। 5 कीवर्ड्स पेपर पे फटाफट लिख दो। पहले 5 क्वेश्चन पढ़े, उसके कीवर्ड्स जो मेन हैं जिसके बारे में बात कर रहा है वो फटाफट एक पेपर पे लिखे। नाउ स्टार्ट रीडिंग द पैसेज, और वो जो 5 वर्ड आपने जहां जहां लिखे हैं पेन रेडी रखना, जैसे वो पैसेज पढ़ रहे हो, जहां वो वर्ड आ गया, जिस लाइन पे आ गया, वो लाइन नंबर गिन के फटाफट लिख देना उसके आगे। इस तरह से आपके, जब आप वापस पैसेज की क्विक स्कैनिंग के बाद वापस आओगे क्वेश्चन पर सॉल्व करने, आंसर देने के लिए, तो आपके सामने क्वेश्चन के सामने लाइन नंबर लिखा होगा। अब आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उस लाइन नंबर पर वापस जाना है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लिखा उस लाइन पे, टिक करो, आगे बढ़ो। सो यू विल टेक हार्डली 30 seconds टू गिव द आंसर टू अ क्वेश्चन आफ्टर राइटिंग ऑल दिस। सो एट द मोस्ट 5 to 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes would be taken to answer these 5 questions. और 5 क्वेश्चन के लिए अगर आप 5 मिनट भी ले रहे हो, 6 मिनट भी ले रहे हो, 7 मिनट भी ले रहे हो, और 5 सही हो रहे हैं, वर्थ इट है, इट्स वर्थ इट। सो दिस इज हाउ पैसेजेस सॉल्व। एंड बच्चों, आपके जो टेस्ट सीरीज है उसमें 100 क्वेश्चंस की मैंने वीडियोस बनाई हैं, और उसके आप इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत वैरायटी है मैंने आपको दी है, और पिछले सालों के पेपर्स के क्वेश्चंस के भी उसमें कुछ क्वेश्चंस डाले मैंने, और उसमें बहुत सारी ट्रिक्स आपको सिखाई हैं। तो आप अभी इसकी और जब टेस्ट सीरीज लोगे और उसमें वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने को मिलेगी। इतना ज़्यादा 100 क्वेश्चंस का जवाब मेरे से सुनोगे और प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करोगे, so you learn a lot. So that's all for today. Thank you.